से यूनिट 2 को स्टार्ट करने लगे अब हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ थॉर्नडाइक जो कहता है वी ऑल नो कि सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर वाली जो चीज़ें होंगी उनको एनिमल दोबारा करेगा और जो अनसेटिस्फैक्टरी होंगे उनको नहीं करेगा. सो we also talk about reinforcers and punisher. Reinforcer is the one जो strengthen करता है एक behavior response को, या punisher वो होता है जो weaken करता है एक response को. जैसे मदर कह रही है no more Nintendo until your grades are up. So एक बच्चे को punish किया जा रहा है ये कह के कि he'll get no more game until he gets some good grades. Reinforcement and punishment both are of two types. Reinforcement can be positive, like pleasant stimulus को add करते हैं to increase a behavior, to maintain a behavior, right? For example, every time I complete one unit, I reward myself a chocolate. That's a reinforcement, positive reinforcement. The negative one is removing aversive stimulus and उस behavior को increase करना, maintain रखना, right? For example, I pay my taxes on time so as to not get fined. Okay. Punishment, positive punishment is when you add an aversive stimulus so as to decrease a behavior. Punishment हमेशा दी जाती है behavior को decrease करने के लिए. You add an aversive stimulus, that's called positive punishment, like थप्पड़ मारना, yell करना. And negative punishment is when you take away something very dear to the person. We'll start with avoidance ka experiment, representative experiment that was done by Solomon and Wine, and the subjects were dog, and the apparatus that they used was called shuttle box. So this apparatus apparently had a electrifiable like floor that could be metal floor जहाँ आप shock दे सकते थे animal को, and the shock could be escaped if the animal jumps from one compartment to the other one. There was presentation of light and दो overhead lights लगी हुई थी, और जब वो बुझ जाती थी उसके 10 सेकंड बाद उसको शॉक मिलता था. एनिमल को अवॉइड कर सकता है या एस्केप कर सकता है वो शॉक से दूसरे कंपार्टमेंट में जंप मार के. So CS is 10 seconds of darkness in this condition. The US is obviously shock, and jumping behavior is the CR, and UR is the fear response. इसको समझाने के लिए इसके बाद एक चीज़ आई जिसको कहा गया अवॉइडेंस पैराडॉक्स. इसमें देखा गया कि एनिमल का बिहेवियर जो है वो यहाँ पर अवॉइडेंस की कंडीशनिंग में ये तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन कंडीशन की तरह हो रहा है कि एनिमल 10 सेकंड से पहले ही जंप मार लेता है, एंड देन ही डजंट रिसीव्स एनी यूएस. सो विद दिस नॉन अकरेंस ऑफ यूएस, हाउ कैन नॉन अकरेंस ऑफ यूएस मेंटेन रीइंफोर्स अ बिहेवियर? सो उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए माउरर ने 2 फैक्टर थियोरी निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 2 फैक्टर्स हैं कौन से, क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग. उनके अकॉर्डिंग बोथ दिस प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर अवॉइडेंस रिस्पॉन्स टू दोनों ही प्रोसेसेस काफ़ी ज़रूरी हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग में द यूएस इज़ शॉक एंड द यूआर इज़ फियर, एंड द सीएस इज़ 10 सेकेंड्स ऑफ डार्कनेस एंड द सीआर इज़ फियर. थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग फियर रिस्पॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द यूएस टू द सीएस. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग से फियर सिखाया जा रहा है एनिमल को, यूएस से लेकर सीएस तक fear shock transfer हो रहा है. The conditioning of fear response to an initially neutral stimuli is first process of this theory. कि हम conditioning करवा रहे हैं, fear response की conditioning हो रही है to an initially neutral stimuli. तो ये first process है इस theory का. Negative reinforcement. अब हम बात करते हैं operant conditioning की. Operant conditioning में इस aversive conditioning में basically हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वी आर रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट. सो हेयर रिडक्शन इन फियर कैन सर्व एज अ रीइंफोर्सर. फियर इज समथिंग अनप्लेजेंट, तो फियर के रिड्यूस होते ही इट कैन सर्व एज अ रीइंफोर्सर फॉर एनी रिस्पॉन्स दैट फॉलोज इट. सो रिडक्शन इन फियर एक तरह से एक रीइंफोर्सर बन के आ रहा है फॉर एनी रिस्पॉन्स जो उसके बाद आता है.
The avoidance response is reinforced by reduction in fear that accompanies the removal of fear eliciting CS darkness. तो अवॉइडेंस अवॉइड कर पाना रिस्पॉन्स को इट इज़ री इन्फोर्स्ड द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स इज़ री इन्फोर्स्ड बाय रिडक्शन इन फियर दैट अकम्पनीज द रिमूवल ऑफ फियर एलिसिटिंग फियर नहीं है तो CS नहीं आएगा तो वो भी रिमूव हो गया ठीक है। अवॉइडेंस रिस्पॉन्स के द्वारा किस चीज़ की रीइंफोर्समेंट हो रही है कि रिडक्शन है फियर में क्योंकि वहाँ से फियर एलिसिटिंग CS जो है डार्कनेस जो है वो अपने आप गायब हो रही है उसके रिस्पॉन्स करते ही। A subject could escape from dark to lit chamber by jumping. सब्जेक्ट कैसे एस्केप कर सकता है डार्क से लाइट वाले चैम्बर में जा सकता है जंप करके। एंड रिडक्शन इन फियर व्हेन CS इज टर्मिनेटेड इज एन ओपोनेंट कंपोनेंट कि फियर में कमी आना जब CS को टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो ओपोनेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पर फियर के रिस्पॉन्स में कमी आना जब भी CS ख़त्म हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है तो वो एक ओपोनेंट कंपोनेंट है। देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड रिमूवल ऑफ द CS देयर है ना रिमूव हो रहा है CS रिडक्शन इन फियर व्हेन द CS इज टर्मिनेटेड दिस इज द ओपोनेंट कंपोनेंट ठीक है। फियर में कमी आना जब CS ख़त्म हो रहा है तो वो ओपोनेंट कंपोनेंट है। यहाँ रिमूवल ऑफ CS इन्वॉल्व है दैट्स वाई दिस इज ओपोनेंट कंडीशनिंग। To recapitulate, we could say पॉजिटिव reinforcement में स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है कॉन्टिजेंट है बिहेवियर के साथ तो लीड्स टू इंक्रीज इन बिहेवियर। नेगेटिव reinforcement में स्टिमुलस रिमूव हो रहा है ऑन द कॉन्टिजेंट बिहेवियर विच लीड्स टू इंक्रीज ऑफ बिहेवियर इन फ्यूचर। पॉजिटिव पनिशमेंट में stimulus is provided in contingent on the behavior decreases the behavior in future. Negative punishment में stimulus is removed contingent on the behavior which leads to decrease in that behavior in the future.